خطرہ اس ملک پر قربان کر دیں گے۔ ہماری کراچی پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ تمام خواتین اس حلف کی تقریب میں شامل ہو جائیں۔ تمام خواتین سے میری درخواست ہے کہ حلف کی تقریب ہے، کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کر سچے دل کے ساتھ حلف لینا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مخلص ہیں۔ میری تمام خواتین سے جو یہاں پر موجود ہیں، بہت جذبہ، جوش اور لگن یہ لے کر یہاں پر آئی ہیں، اور یہی جوش، جذبہ، لگن مجھے یہاں پر نظر آنا چاہیے۔ تمام جس طرح خواتین ترانے کے دوران کھڑی ہوئی تھی، باادب طریقے سے کھڑی ہو جائیں تاکہ کراچی پریزیڈنٹ فضا ذیشان جیسے حلف لے رہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے پاکستان کے لیے ہر گام پر، ہر مشکل پر لڑنے کا حلف لیں۔ ہاتھ بلند کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ میں عہد کرتی ہوں میں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی رہوں گی اور کبھی سچائی کو اپنے دامن سے الگ نہیں کروں گی۔ میں ہمیشہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کروں گی۔ میں نیا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان بنا کر رہوں گی، جہاں عزم ہوگا، برابری ہوگی، جہاں انصاف ہوگا، انسانیت ہوگی، خودداری ہوگی۔ اللہ مجھے میرے ارادوں میں کامیاب کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کے بعد ایک نعرہ جوش اور جنون سے ہو جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مجھے لگ رہا ہے اب خواتین جاگی ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ حسینی نعرہ الا اللہ، حسینی نعرہ، قرآن پکارا، قائد نے پکارا، کپتان پکارا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اچھا، میں یہاں پر بلانا چاہوں گی، بار بار جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ کنونشن جو ہے وہ خواتین کا ہے، لیکن جن شخصیت کو میں یہاں پر بلانے ابھی جا رہی ہوں، وہ ایک شخصیت ہماری تمام خواتین پر بھاری پڑتی ہیں، اور یقین کیجئے کہ وہ جب سامنے آتے ہیں تو ان کی شخصیت سے، ان کی پرسنالٹی سے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی قابلیت سے ہم لوگ تھوڑے سے سہم جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، اور جب یہ بولتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے الفاظ سے، ان کی فہم سے، فراست سے، تجربے سے، ان کی جو ہے وہ جو زندگی انہوں نے سیاست میں گزاری ہے، اس سے کچھ سیکھیں۔ تو مجھ جیسے ناکارہ ایک طالب علم جو سیاست کا ہو، ان کے لیے یہ ہمارے استاد محترم ہیں جو ہمارے جیسے لوگوں کو اپنے کاندھے کی بلندیاں تقسیم کرتے ہیں اور خوب گمنام رہتے ہیں۔ میں یہاں پر بلانا چاہوں گی آپ سب کی تالیوں میں، نام آپ نے خود لینا ہے، جناب ہمارے لیے بہت محترم، نام خود لینا ہے، فردوس بھائی اسد عمر بے شک لائق ہیں، قابل تحسین ہے، ان کے لیے بھی میرے پاس بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن ابھی ہم نے اپنے استاد کو بلایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فضا ذیشان سیدنا
आपकी पूरी टीम को इस शानदार विमेन कन्वेंशन के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों और हमारे वर्कर्स, मैं इस बात का एहसास रखते हुए कि चंद लम्हे हैं, उसके बाद हम सबका लीडर, हम सबकी जान इमरान खान, पाकिस्तान का कप्तान, उसका है हमें इंतजार। लेकिन सबसे पहली बात, ख्वातीन तहरीक इंसाफ अगर बनाई गई है तो जुल्म के खिलाफ बनाई गई थी, और इस माशरे में अगर जुल्म गरीब के बाद किसी एक तबके के साथ है वो ख्वातीन, तो ये तहरीक इंसाफ जो कि लफ्ज़ जुल्म की जिद है, इसका सबसे बड़ा मकसद गुर्बत को हटाने के बाद ख्वातीन को उनके हकूक दिलाना। ख्वातीन, इस मुल्क की बेटियां रोजे अव्वल से उनके ऊपर जुल्म होता है। तालीम, लड़कों के बराबर मौके नहीं मिलते। जब वक्त शादी का आता है तो लड़के वाले जुल्म करके जहेज मांगते हैं। जब नौकरी का वक्त आता है तो उनको बराबर की तनख्वाह नहीं दी जाती। जब वो काम करने पहुंचती हैं तो उनके साथ बहुत सारी जगहों पे नाइंसाफी होती है। इस माशरे में मेरी बेटियों को कई जगहों पे उनका जायदाद में हक नहीं मिलता। इतने जुल्म हैं जिनको गिनाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। इसका हल ये है, जो आप आज यहां जमा हुई हैं, आपको सियासत में आना होगा। आपको अपने वजूद का एहसास दिलाना होगा। आपको आगे बढ़ना होगा। और जब आपके पास एक ऐसा कायद हो जो इस बात पे यकीन रखता हो कि ख्वातीन को माशरे में उनका जायज मकाम दिला के रहूंगा, तो आपको डर किस बात का। आइए तहरीक इंसाफ में अपना किरदार अदा कीजिए। इंसाफ की इस जद्दोजहद में अपना किरदार अदा कीजिए, अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। आप इंसाफ लेके रहिए, मांगिए नहीं। आपको इस जद्दोजहद का हरावल दस्ता बन के अपने हकूक लेने हैं। आज का यही पैगाम है। आप सबको आगे बढ़ना है। आप सबको तहरीक इंसाफ में आके अपने लिए इंसाफ लेके रहना है। आपकी तवज्जो का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी प्रेसिडेंट कराची। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए हमारे लिए बहुत ही मोहतरम बिलाल गफ्फार भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब असद उमर साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे MNAs, MPAs, खुर्रमशेर जमान पार्लियामेंट्री लीडर फिरदौस भाई, आफ्ताब सिद्दीकी साहब, राजा अजहर, और खास तौर पे मैं वुमेन के तमाम MNAs, MPAs का शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान वुमेन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची वुमेन विंग को मुबारकबाद पेश करता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपकी मेहनत बिल आखिर रंग ले आई। देखिए, ये आपका एक पहला इकदाम आपने बड़ा जबरदस्त किया है, लेकिन जिसको कहते हैं कि अभी जो रेस है वो बहुत लंबी है। ये अभी शुरुआत हुई और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कराची की काबीना, टाउन के लोग,
मैं पूरी तरीके से पुरुमीद हूं कि आप लोग बेहतरीन काम करेंगे और जो तंजीम का टारगेट है वो पूरा करेंगे। 15 जनवरी को इलेक्शन आना है। मैं आप सबसे एक चीज का हलफ लूंगा और अहद कर लूंगा, आप सब लोग पोलिंग एजेंट बनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बताएं, आप सब लोग पोलिंग एजेंट बनेंगे? इमरान खान का साथ देंगे? डरेंगे तो नहीं, घबराएंगे तो नहीं? देखिए 15 जनवरी को आपने अपना वोट डालना है, अपने रिश्तेदारों का वोट डालना है, अपने दोस्तों का, अपने तमाम मोहल्ले वालों से वोट डलवाना है और अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी को मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा होगा, इमरान खान का नुमाइंदा होगा। पिछले 8 महीने से जिस तरह खवातीन और पूरे कराची की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, उन्होंने फैसला सुना दिया है कि जिस तरह ये इंपोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई, हमें किसी तरीके से भी, किसी सूरत भी ये इंपोर्टेड हुकूमत हमें कबूल नहीं है। कबूल है आपको इंपोर्टेड हुकूमत? आवाज नहीं आ रही। इंपोर्टेड हुकूमत? अब थोड़ी आवाज आई। देखें, ये इमरान खान ने जो हकीकी आजादी की जो जिद्दोजहद की है, ये अब फैसला कुन मार्के में है और इमरान खान ने बता दिया, पूरी दुनिया को बता दिया, पाकिस्तानी अवाम में शऊर पैदा कर दिया कि किस तरह एक आपकी अवामी हुकूमत को एक साजिश के तहत घर भेजा गया और कराची की अवाम ने यह फैसला सुना दिया कि हम इमरान खान के साथ हैं, कप्तान के साथ हैं। मैं ये शुक्रिया अदा करता हूं और बड़ी खुशी होती है मुझे बोलने में कि खवातीन मदर विंग के साथ खड़ी हैं, शाना बशाना खड़ी हैं और आपने ये सब साबित कर दिया कि आप मर्दों से पीछे नहीं हैं और आप तहरीक इंसाफ की सच्ची सिपाही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बातें बहुत करने की है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम सब असद उमर साहब को सुने, अली जैदी साहब को सुने और हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब को सुने। बस आखिरी चीज, पाकिस्तान, पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुख्तसर वक्त लेकर मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी, मैं मुल्तमिस हूँ यहाँ पर नाम पुकारूंगी। हमारे लिए बहुत ही स्पेशल यहाँ पर आई हैं, हमारी तालियों में भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा प्रेसिडेंट वुमेन विंग पाकिस्तान, हौसला मंद, जुर्रतमंद, मजबूत आसाब के मालिक। इनके टॉक शोज हम देखते रहते हैं, ये हमारे लिए भी एक हौसला है। हमारे दरमियान मौजूद जनाब मोहतरमा कमल शोजोब साहिबा। नदीम साहिबा, मजाला सैफी बैठी हैं, नुसरत वाहिद साहिबा, फरखंदा कौकब आई हैं, अली जैदी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, तमाम MNAs, MPs और PTI की खवातीन जालियों को अस्सलाम वालेकुम। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि सब बैठे हैं यहाँ पे अपने चेयरमैन इमरान खान साहब को सुनने और उनसे पहले उनकी टीम के सबसे जबरदस्त खिलाड़ी असद उमर साहब को सुनने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ कोशिश करूंगी कि विमेन विंग का थोड़ा सा जो रोल है वो जरूर बयान करूं। अभी यहाँ पर बहुत सारी तारीखें बताई फिजा जीशान साहिबा ने, जिनको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ इतना जबरदस्त कन्वेंशन करवाने पे, और उनके साथ सलीना साहिबा को जिन्होंने उनकी पूरी इसमें मामलत की और एक जबरदस्त फंक्शन किया। 25 मई की बात हो रही थी, उससे पहले 10 अप्रैल की बात हो रही थी। मैं उससे पहले एक और तारीख याद कराना चाहती हूँ, 12 मई। कराची की तारीख 12 मई को नहीं भूल सकती, जितनी वायलेंस यहाँ पर हुई थी। और उस वायलेंस में भी उस दिन हमारे लीडर इमरान खान साहब को यहाँ आने से रोका गया था। यहाँ मुझे याद है, मैं यहाँ मौजूद थी उस वक्त, मैं कराची में रहती थी, कि किस तरह गोलियां चली थी और PTI की मौजूद थी कि उस वक्त भी वो नहीं डरती थी जब इतनी सी हुआ करती
یا آٹے کی بوریوں کے لیے لائنیں لگی ہوئی یا PTI کی ممبرشپ لینے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور پورا انقلاب آپ کو آتا ہوا نظر آ گیا ہے۔ پاکستان کی عوام نے، بالخصوص پاکستان کی خواتین نے یہ بات تسلیم بھی کر لی ہے اور بتا بھی دی ہے کہ ہم اپنی حقیقی آزادی کی جو جہاد ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور غلامی ہمیں نامنظور ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ جہد ہے جو عمران خان نے آپ تک پہنچائی ہے، اور میں سمجھتی ہوں حقیقی آزادی، بلکہ حقیقی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب گھر کی خواتین تبدیل ہوتی ہیں۔ تو یہ صحرا، یہ کریڈٹ پاکستان کی 52% آبادی کو جاتا ہے کہ سب سے پہلے تبدیلی کا جو پیغام تھا وہ پاکستان کی خواتین نے قبول کیا اور اس کو آگے لے کے چلی۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں کہ 9 اپریل کو جس وقت ہمارے لیڈر ایک ڈائری لے کے نکلے اور ان کے یہ سب جو دوست ہیں، یہ ان کے سارے رفقا ہیں، یہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو 10 اپریل کو آپ سب باہر نکل آئے اور یہاں پر پولیس گردی کا مقابلہ کیا، اسٹیٹ وائلنس کا مقابلہ کیا، آپ نے یہاں پر ہر قسم کے مظالم کا مقابلہ کیا، لیکن میں نے آپ کے نہ جذبوں میں کمی دیکھی، نہ ہمت میں کمی دیکھی، اور نہ جنون میں کمی دیکھی، اور نہ نظریے کے اوپر کوئی میں نے دیکھا کہ کسی نے گیو اپ کیا ہے۔ اس وقت 15 جنوری الیکشن جس کو بارہا کینسل کیا گیا، چھپا گیا الیکشن کمیشن کے پیچھے، آج کل ہماری جو PDM کی جماعتیں ہیں ان کو اگر کسی لفظ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ الیکشن ہے۔ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح الیکشن لفظ ان کے سامنے نہ آئے۔ تھے عمران خان صاحب کی جانیں نکل جاتی تھیں، اب الیکشن کی بات کریں تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن 15 جنوری کو انشاءاللہ تعالی جو دوبارہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جن کو بارہا انہوں نے کوشش کیا کہ ہٹا دیں یا کسی طرح سے روک دیں یا ٹال دیں، تو اس کے لیے آپ سب کا کردار، آپ سب کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے خود بھی نکلنا ہے، اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کر نکلنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو غلامی نامنظور ہے وہ آپ نے بلے پہ ٹھپا لگا کر لگانے ہیں، جا کے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ کریں گے؟ نکلیں گے؟ خود بھی نکلیں گے اور نکالیں گے، اور انشاءاللہ تعالی 16 جنوری سندھ میں تبدیلی گا، سندھ میں تبدیلی کا دن 16 جنوری سے انشاءاللہ طلوع ہو جائے گا، کیونکہ یہاں کی سب سے بڑی بیماری زرداری، جس نے یہاں پر لوگوں پہ مظالم ڈھائے ہیں، پچھلے 14 سالوں سے یہاں کی عوام کو، 40 سال سے تو بھٹو زندہ تھے، لیکن 14 سال سے زرداری بڑی بیماری نے بھی یہاں پہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور ان کے تسلط سے نکلنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ الیکشن میں نکلیں اور ووٹ کے تھرو اپنی جو ہے تبدیلی لے کر آئیں، اپنی حقیقی آزادی لے کر آئیں، اور عوام کو جو ان چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کے ظلم سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نجات دلائیں۔ میں صرف آخر میں اتنا کہوں گی، بڑی کوششیں ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے عمران خان کے سپاہی ہیں ان کی زبان بندی کرا دی جائے، ان پہ وائلنس کی گئی۔ ایک تو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اسد عمر صاحب کو بھی بڑے نوٹس زبان بندی کے لیے کہ کسی طرح ان کی بھی ہم سب کے لیے بھی اسی قسم کے تدارک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ زبان ہے، لیکن PTI ٹوٹے ہیں، اور انشاءاللہ یہ حوصلے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک نئے پاکستان کی، ایک تبدیلی کی انشاءاللہ بنیاد بنیں گے، اور ہم اپنی نسلوں کے سامنے فخر سے یہ بتا سکیں گے، آنے والی نسلوں کے سامنے، کہ جس وقت عمران خان حقیقی آزادی کی جنگ لڑے تھے ہم بھی اس میں ایک چھوٹا سا سپاہی کا رول ادا کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ آپ سب خواتین نے مل کر 15 جنوری کو اپنے گھروں سے نکلنا ہے، اور اس حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے اس کو انشاءاللہ 16 جنوری کو ایک نئے سورج کے لیے آپ نے لڑائی لڑنی ہے اور اس کو توڑ پہنچانا ہے۔ پاکستان، پاکستان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ اور ساتھ میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین۔ بہت بہت شکریہ۔ تحریک پاکستان کی ایک جاندار آواز، ذہنوں کو بیدار کر دینے والی اور
दिलों को जिला बख्शने वाली। नाम लेने से पहले मैं यहाँ उनके हवाले से कुछ कहना चाहूंगी। ये वो शख्सियत है कि हमारे खून में वो जोश है, वो धार बाकी है, हमारे लफ्ज में वो ताकत गुफ्तार बाकी है। हमें अब भी हमारी बात को मनवाना आता है कि हमें अब भी अपनी नामूस पर मर जाना आता है। मजीद कुछ कहे बगैर मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, तालियां भरपूर होनी चाहिए हमारे दरमियान मौजूद जनाब असद उमर साहब। सेक्रेटरी जनरल जनाब असद उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम हमारी विमेंस विंग की जो ख्वातीन हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज की इस तकरीब का एहतमाम करने के लिए, और बड़ी तादाद में ख्वातीन को देख ये नज़र आ रहा है कि मेहनत करती रही है विमेंस कराची के अंदर और उसके असरात हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि 15 तारीख अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया, उसमें अगर ये फिर दोबारा भाग नहीं गए, क्योंकि ये बार बार हर इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो कोई बाइद नहीं कि दोबारा से ये भागने की कोशिश करें। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जितना प्रेशर बिल्ड कर दिया गया है तो ये इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते में हो जाएंगे, और आपकी उस दिन विमेंस विंग की जो शमूलियत है इसके अंदर जो कारकर्दगी है, मेरी राय के मुताबिक वो सिर्फ अहम नहीं बल्कि कलीदी किरदार अदा कर सकती है उस इलेक्शन के अंदर। और ये इलेक्शन कितना ज़रूरी है तमाम ख़वातीन जानती हैं। जो मसाइल हमें शहर के अंदर जिनका सामना करना पड़ता है, उन मसाइल में तो वो जो भी मसाइल का सामना करना पड़ता है वो ज़ाहिर है सिर्फ मर्दों को नहीं करना पड़ता, ख़वातीन को भी उन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये सब कराची के शहरियों के लिए ज़रूरी है कि हम 15 तारीख को एक ऐसा फैसला देखें जिसके नतीजे में जिम्मेदारी शहर की उन लोगों के पास आए जो नीयत भी रखते हो, हौसला भी रखते हो, सलाहियत भी रखते हो, और सिर्फ आपको ये ना बताएं कि वो क्यों काम नहीं कर सकते। क्योंकि इस शहर में हमने पिछले 30 साल से यही देखा है कि जो वोट कराची के नाम पर लेकर जाते हैं वो कराची के नाम पर वोट तो ले जाते हैं, और उसमें से बहुत सारे इनफरादी लोगों की जिंदगी बहुत बेहतर भी हो गई, और हमने देखा कि उनकी जिंदगियों के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई। लोगों के सफर जो शुरू हुए थे होंडा 50 से वो पजेरो तक पहुंच गए। लेकिन कराची का शहर जो है वो 30 साल पहले जहां पर था उससे भी ज्यादा खराब हालात आजकल हमें शहर में देखने को नजर आते हैं। तो इसलिए वोट उनको नहीं देना है जो आपको सिर्फ उसके बाद ये आकर बताएंगे कि वो काम क्यों नहीं कर सके। जो सूबे के अंदर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं वो शहर के बारे में क्या समझते हैं वो सब जानते हैं। वो शहर जो सूबे का 90% का रेवेन्यू देता है, वो उस सूबे के रेवेन्यू के 10% भी वापस उस शहर को नहीं मिलता। इस शहर की टूटी हुई सड़कें, इसका ना होने वाला पानी का निजाम, यहाँ वाटर टैंकर माफिया का राज, यहाँ के सरकारी स्कूलों के हालात, सरकारी अस्पतालों के हालात, सब इस बात की गवाही देते हैं कि वो पार्टी जो इस सूबे के अंदर 6 दफा हुकूमत बना चुकी है, उसका कराची के लिए ना उनको कराची से वोट मिलता है और ना उनकी नीयत है कराची के लिए कुछ करने के लिए। दूसरी पार्टी जो है वो आपस में तितर बितर हो गए, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते रहे। आजकल बल्ले के खौफ से साथ उन्होंने मिलना शुरू कर दिया है। मैं बार बार ये कहता हूं, हमें तो सियासी खौफ कुछ भी नहीं है। सिफर जमा सिफर जमा सिफर सिफर ही रहता है। वोट शहर के अंदर बल्ले का है, वोट शहर के अंदर इमरान खान का है, उसके अलावा किसी का वोट नहीं है।
تو یہ لوگ مل جائیں ساتھ تو اچھا ہے، تین تین کا الگ شکار کرنے کے بجائے ایک ساتھ ہی شکار کریں گے. کیوں جی محمود بھائی تیار ہیں؟ محمود بھائی تو ابھی کر چکے شکار، صرف 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. یہاں پہ کیماڑی کے الیکشن کے اندر، کرنگی کے الیکشن کے اندر راجہ اظہر نے بھی بڑی محنت کی تھی. انشاءاللہ تعالی 2023 الیکشن کا سال ہے. الیکشن کا سال کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ کیا ہے؟ الیکشن کے سال کا مطلب عمران خان کا سال. یہ چاہے کچھ بھی کر لیں، یہ کتنا بھاگنے کی کوشش کیوں نہ کر لیں، 2023 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا. آج سے چند ماہ کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہوں گے. انشاءاللہ تعالی اس دفعہ سندھ کے صوبے میں حکومت تحریک انصاف بنائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ آج سے نہیں، اگلے ایک ہفتے آپ نے محنت کرنی ہے. خاص طور پہ 15 تاریخ کو محنت کرنی ہے. گھروں سے نکلنا ہے، اپنے گھر والوں کو نکالنا ہے، محلے والوں کو نکالنا ہے، بلے کے اوپر مہر لگانی ہے تاکہ کراچی کا میئر بھی تحریک انصاف کا ہو، ایماندار ہو، محنتی ہو. اور جب شہر، صوبہ اور ملک تینوں ان کے پاس ذمہ داری ہوگی، جن کی نیت کام کرنے کی، جو ملک کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ملک سے کچھ لینا نہیں چاہتے، تو انشاءاللہ تعالی کراچی کی ترقی کا سفر شروع ہوگا. وہ ترقی جو میرا دل کا یہ یقین ہے کہ اس شہر اور اس ملک کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا. مجھے پتا ہے آج کل بہت مایوسی پھیلی ہوئی ہے. آج کل میں جس سے بھی بات کرتا ہوں، خاص طور پہ مجھے دکھ ہوتا ہے، نوجوان میرے پاس آتے ہیں، مایوس ہیں، پریشان ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کے اوپر چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے، کس طریقے سے ملک کو لوٹا جا رہا ہے. بدترین ملک کی تاریخ کی مہنگائی نظر آ رہی ہے. بے روزگاری کا طوفان کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے. زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جاتے ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں. لیکن نوجوانوں، میں آپ کو بتاؤں، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی دین ہے. کوئی وجہ ہے کہ یہ ملک جو سال میں کسی بھی دن بن سکتا تھا، وہ آپ کو پتا ہے. نوجوانوں کو شاید اس بات کا نہ پتا ہو، یہ ملک 27 رمضان المبارک کے دن وجود میں آیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے ملک. اس لیے چاہے یہ امپورٹڈ حکومت ہو، ان کے بیرون ملک آقا ہوں، ان کے فیسیلیٹیٹر ہوں، جو کچھ بھی کر لیں، پاکستان کے عوام فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اس ملک کے فیصلے ہوں گے تو وہ پاکستان کے عوام کریں گے. کسی بند کمرے کے فیصلے پاکستان کے عوام کو قبول نہیں ہے. آپ قبول کریں گے یہ فیصلے؟ پاکستان کی خواتین مسترد کرتی ہیں آپ کے ان فیصلوں کو. اگر فیصلے ہونے اس ملک کے مستقبل کو ہے تو یہ کراچی میں بیٹھی ہوئی خواتین کریں گی. سکھر والے کریں گے، لاڑکانہ والے کریں گے، لاہور والے، چارسدہ والے، کوئٹہ والے کریں گے. نہ لندن میں ہوں گے، نہ امریکہ میں ہوں گے، نہ پاکستان کے بند کمروں میں ہوں گے. صرف اور صرف فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے. اچھا، یہ ابھی تک اگر کسی کے ذہن میں شک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی کی خواتین ان کو اپنا واضح پیغام پہنچا دیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور آپ کا جواب میں سننا چاہتا ہوں. غلامی، غلامی. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین تو بالکل واضح ہیں، انہوں نے تو غلامی کو نامنظور کر دیا ہے. لیکن یہ کچھ بزرگ مرد بیٹھے ہوئے آگے، ان کے ذہن میں مجھے ابھی بھی ابہام لگ رہا ہے. خواتین کو کوئی ابہام نہیں ہے، غلامی مسترد ہو چکی ہے.
اچھا یہ بھی جو ہے نا یہ علی زیدی صاحب آگے. جناب صدر سندھ کراچی کے فرزند علی زیدی یہاں پہ آ گئے ہیں. اپنی برانڈ کے مطابق وقت سے لیٹ پہنچے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا یہ ان جیسے مردوں کو یہ غلط فہمی پھیلانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اوہو جی میں تو بیوی کا غلام ہوں. کرتے سارے خود فیصلے ہو, ڈالتے بیوی کے اوپر, خدا کا خوف کرو. انشاءاللہ تعالی پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. پاکستان بہتر جب ہوگا جب پاکستان کے فیصلوں کے اندر خواتین برابر کی شریک ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آ چکا ہے. عمران خان اپنے ساتھ پاکستان کی خواتین کو پیچھے نہیں ساتھ لے کر چلیں گے, ہراول دستہ بنا کر چلیں گے. اور آخر میں احمد فراز کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن یہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. الفاظ یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. الفاظ ان کے ہیں لیکن یہ صرف ان کے لیے حقیقت نہیں, یہ آپ کے لیے بھی حقیقت ہے. پچھلے 9 ماہ میں خاص طور پر جس طریقے سے تحریک انصاف کی خواتین نے ہمت, جرأت اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے, لاٹھی چارج برداشت کیے ہیں, ٹیئر گیس برداشت کی ہے, پولیس گردی برداشت کی ہے, ریاست کی صحبت برداشت کی ہے, یہ آپ سب کے لیے میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. احمد فراز کے الفاظ ہیں. فردوس بھائی اجازت ہے؟ میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے. یہ خواتین کہہ رہی ہیں میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے, کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم, تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم, میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی. اچھا جی, آخر میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر ہمارے پاس اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ ایسی مائیں بھی موجود ہیں جو نہ صرف خود اپنی محنت اور جذبے سے ملک کی بہتری کے لیے قربانی دے کر کام کرتی ہیں, لیکن ایسی مائیں بھی موجود ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے اپنے بیٹے شہید کر کے بھی راہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتی اور ملک کے لیے محنت کرتی رہتی ہیں. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں طاہا شیخ کی والدہ ارم طارق صاحبہ کو, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کھڑی ہو کے ہم سب ان کو پلیز کھڑے ہو کے ان کو سلوٹ کریں. بہت شکریہ جی. پاکستان تیرے لہجے سے پتھر بھی پگھل سکتا ہے. تو وہ زمانہ ہے جو صدیوں کو بھی بدل سکتا ہے. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. کراچی کیبنٹ سے میں درخواست ہے کہ وہ یہاں پر آ جائیں فوٹو سیشن کے لیے, اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں اور ہونٹوں کی مسکان کو ہمیشہ سلامت رکھے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ آپ کو ایسی کسی مسکان سے آشنا کر دے. بہت شکریہ. یہاں پر یہ موجود ہیں کہ جن کو نہ بلاؤں تو زیادتی ہوگی, بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ جن کو میں نہ سنوں تو تھوڑی تشنگی سی رہتی ہے. سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گی ہمارے ایکس کراچی پریزیڈنٹ, کہ جن کی پریزیڈنسی میں رہ کر ہم نے بہت کچھ سیکھا. بہت مختصر بتانا چاہوں گی یہاں پر.
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज आप सब जो आज कराची में आप सब जमा है, हमारी तहरीक इंसाफ की ख्वातीन, एक पाकिस्तान के उस वक्त, उस मोमेंट पे, उस तारीखी मरहले पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आपने सब ने, जितनी आप, जहां तक मुझे पता कि 400-500 ख्वातीन हमारी बैठी हुई हैं, मैं आप सब के लिए जो आज पैगाम दूंगा, आपने ये याद रखना। क्योंकि देखें, मुल्क की तारीख में ऐसे वक्त आते हैं जिनको तारीख डिफाइनिंग मोमेंट्स कहती है। आवाज आ रही? डिफाइनिंग मोमेंट्स का क्या मतलब होता है? डिफाइनिंग मोमेंट्स का मतलब यह होता है कि वो फैसला कुल टाइम जिधर एक मुल्क तबाही की तरफ भी जा सकता है, अरूज की तरफ भी जा सकता है। पाकिस्तान की तारीख का आज सबसे बड़ा क्राइसिस है। अगर मैं क्राइसिस देखूं तो हमारी जिंदगी के अंदर हमारा मुल्क टूटा, बांग्लादेश बना, मुझे वो अभी भी याद है। बहुत बड़ा क्राइसिस था पाकिस्तान में। और उसके अलावा भी क्राइसिस आए, लेकिन कभी भी ऐसा क्राइसिस नहीं आया जो आज है। एक आदमी के फैसले से, वो कौन था, वो अब सब जानते हैं कौन था, जिसके फैसले से एक ऐसा मुल्क के अंदर बुरहान आया है जिसकी पेशन गोई आज से मैंने 7 महीने पहले कर दी थी। वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई अल्लाह ने गैब का इल्म दिया है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की तारीख जानता हूं। और मैं ये खास तौर पे ये जो दोनों जमातें जिनकी लीडरशिप के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, इनकी करप्शन के ऊपर, इंटरनेशनल अखबारों में इनकी करप्शन लिखी हुई है, सिर्फ यही देख लें कि इन दोनों ने एक दूसरे के मुतल्लिक क्या कहा है। 20 साल ये एक दूसरे को चोर कहते रहे और दोनों ही सच बोल रहे थे। इनकी गवर्नमेंट 90 की दिहाई में 2-2 दफा करप्शन में गई। तो जब ये 2 करप्ट खानदान ऊपर बैठे थे, तो आप याद रखें कि हिंदुस्तान 90 की दिहाई में पहले हमारे से आगे निकला। 90 की दिहाई से पहले हमेशा पाकिस्तान आगे था, हमेशा हम हिंदुस्तान से आगे थे। बर्रे सगीर में सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते थे हम आगे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में यह लिखा हुआ है। लेकिन 90 की दिहाई जब इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, तब से पाकिस्तान पीछे रह गया और बांग्लादेश भी आगे निकल गया। तो जो मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं, ये आपने बड़े गौर से इसलिए सुननी है कि ये इसके हमारी अब जद्दोजहद के ऊपर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो डिपेंड कर रहा है। हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जद्दोजहद करते हैं, कितनी लोगों के अंदर शऊर पैदा करते हैं। हमने जो डोर टू डोर कैंपेन शुरू की हुई है, हम घरों में जाके लोगों को जगाते हैं। और जितना अवाम में शऊर आता जाएगा, उतना ही हम ये जो इतना बड़ा आज क्राइसिस के अंदर हम पड़ गए और ये मजीद बिगड़ेगा, हम इसका मुकाबला कर लेंगे। और वाहिद आपकी जमात है। ये याद रखें, आज अगर कौम किसी की तरफ देख रही है, वो आपकी तरफ देख रही है। क्योंकि ये सब एक तरफ हो गए हैं। सारी जमातें जो 30 साल से, और खास तौर पे ये 2 बड़ी जमातें जो इक्तदार में बैठी रही हैं, ये सब एक तरफ हो गई हैं। और इस वक्त कौम को सिवाय आपकी जमात के कोई और नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से अब निकालेगा। और ये हमेशा याद रखें कि हम अब तक ये उम्मीद लगा के रहते थे जी कि चलें जी, पॉलिटिशियंस ने बुरा किया तो एस्टैब्लिशमेंट आ जाएगी और वो बचा लेगी। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं, उसमें एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहां खड़े हैं।
اور मैं फिर से क्योंकि बार बार अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि मैंने उसको बताया भी था और मैंने शौकत तरीन को भी भेजा उसको समझाएं कि अगर आपने हुकूमत को, हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, जो बड़ी मुश्किलों से एक बैंकरप्ट मुल्क था जो हमें मिला था, आज वो कोई अखबार में इश्तिहार आया हुआ है जी कि उन्होंने डिफॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को। ये अभी असद उमर ने मेरे से पहले आपसे बातचीत की थी। असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर थे जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 में। जरा असद उमर से बाद में पूछें कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही थी जब हमें पता चला सिर्फ $8 अरब के हमारे पास रिजर्व्स रह गए थे। यही इसाक डार ने सारा पैसा एक डॉलर को सिर्फ मसनूई तौर पे कंट्रोल करने में इसने हमारे अरबों डॉलर के रिजर्व्स गायब कर दिए। और वो टाइम था जब जो तेल इंटरनेशनल मार्केट में वो आज के मुकाबले में सबसे कम था। इसकी खुशकिस्मती नून लीग की ये थी कि इनके दौर में तेल सबसे कम था। हमारे दौर में तो वो कोरोना के बाद सुपर साइकिल आ गया, कमोडिटी का ऊपर चला गया। मैं इसलिए ही आपको बातें बता रहा हूं कि आपको बैकग्राउंड पता चलनी चाहिए कि ये हुकूमत जो है, ये जो पीडीएम है, ये इनकी सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है, प्रोपेगेंडा में होती है, सहाफियों को पैसा खिला के होती है, मीडिया हाउसेस को साथ मिला के होती है, ग्राउंड पे नहीं होती। क्योंकि अगर होती तो जो इनको हुकूमत मिली थी, जो हम छोड़ के गए थे, तो आज ये हाल ना होता कि सारी दुनिया के सामने बेकारियों की तरह फिर रहे हैं और मुल्क डिफॉल्ट के करीब है और पैसे मांगते फिर रहे हैं। ये ना होता क्योंकि हमारे, फिर से इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में पढ़ ले, हमारे सबसे बेहतर इंडिकेटर्स थे। पाकिस्तान की तारीख में वो हमने अचीव किया था जो किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया। रिकॉर्ड हमने एक्सपोर्ट्स और जो भी एक्सपोर्ट्स, टैक्स कलेक्शन, रेमिटेंसेस, सर्विस सेक्टर की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमारे दौर में हुई। और ज़राअत जो कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, जो किसानों से पूछेंगे किसानों के क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं, तो उधर से इन्होंने मुल्क का जो आज खड़ा किया तबाही के किनारे पे। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमें अब सबको मिलकर अब जद्दोजहद करके इस मुल्क को निकालना है इधर से। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हम ही वो पार्टी है, हम अब पूरी एक तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर पूरा हमने एक वाइट पेपर तो इनका बताया है और अपना हम अब बैठ के बकायदा वॉर गेमिंग कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कैसे निकालना है। वो कौन कौन से अब इनकलाबी हमें कदम उठाने पड़ेंगे कि अपने मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। और मैं अभी भी आपको कहता हूं, अगर कोई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमात अगर कोई भी निकाल सकती है, कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं निकाल सकता, वो सिर्फ एक जमात है, वो है तहरीक इंसाफ। और वो कैसे निकालेगी? सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट आएगी। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की गई, मुझे खौफ यह है कि हमारी बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे हैं होते हुए। एमक्यूएम को इकट्ठा करना, बैप को पीपल्स पार्टी में धकेलना बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को वो कॉल कर करके इनके आदमी कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। यहां पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत लेके आए, वो जो नून लीग ने मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया, वो अब उसको पंजाब में लाना चाहते हैं। केपी के अंदर और गेम चल रही है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमजोर किया जाए, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए, जिसका मुझे अभी मकसद ही नहीं समझ आ रहा। अकल तो यह कहती है कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके एक कमजोर सा सेटअप लेके आना है तो वो तो वैसे ही मुल्क को संभाल नहीं सकता। क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो सरमायाकार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, जो पाकिस्तान के बाहर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद नहीं बहाल होगा,
तो पाकिस्तान तो क्या भीख मांग के तो नहीं निकल सकता ना इसमें से। और मैं फिर से कह दूं, जिनसे हम भीख मांग रहे हैं उन्होंने एक बहुत भारी कीमत पाकिस्तान से मांगनी है बेल आउट करने के लिए। वो बड़ी कीमत वो पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज करके वो कीमत देंगे उनको। मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाल के वो जो कीमत मांग रहे हैं वो देनी पड़ेगी। लिहाजा एक ही तरीका है, एक मजबूत और गवर्नमेंट आए जिसको लोगों को और बिजनेस कम्युनिटी को इत्मीनान हो कि 5 साल के लिए आई है। उसके बाद वो इनकलाबी स्टेप्स ले, वो स्ट्रक्चरिंग करे पाकिस्तान की, वो सर्जरी करे पाकिस्तान की, जो कोई कमजोर हुकूमत नहीं कर सकती। वो ये जो रेलू कटे आए हुए हैं पीडीएम के, ये नहीं कर सकते। इनको तो सारा वक्त डर है। इनका तो सबको पता चल गया ना कि मकसद क्या था, अपनी चोरी को छुपाना। पहले ये मुल्क की तबाही करते हैं पाकिस्तान से पैसा चोरी करके, फिर उसकी तबाही करते हैं वो मुल्क से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके, बड़े बड़े महल्लात और बिजनेसेस और घर लेके, और फिर तबाही करते हैं उस चोरी को एनआरओ दिलवाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। जो इन्होंने अभी नैब अमेंडमेंट्स किए हैं, इन्होंने दरवाजे खोल दिए व्हाइट कॉलर क्राइम के। अपनी चोरी बचाने के लिए इन्होंने करप्शन को लाइसेंस दे दिया है, छोटी चोरी को नहीं। वो जो पटवारी लेवल की चोरी या थानेदार लेवल की चोरी, वो नहीं, वो तो लोगों को तंग करती है, लेकिन वो मुल्क को तबाह नहीं करती। मुल्क को तबाह करती है व्हाइट कॉलर क्राइम। जब प्राइम मिनिस्टर मुल्क से पैसा चोरी करता है, जब उसके वजीर चोरी करते हैं, और जिसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, कि वो वजीर और प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े सरमायाकारों या बिजनेसमैन से मिलकर जब चोरी करते हैं और वो मुल्क से फिर चोरी करके पैसा बाहर भिजवाते हैं, ऐसे मुल्क तबाह होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये आज अगर आप सारी दुनिया की डेवलपिंग वर्ल्ड देख लें, डेवलपिंग वर्ल्ड का मतलब जिधर गुर्बत है, वो सारी दुनिया के उन मुल्कों में जिधर गुर्बत है वहां सब इस तरह की चोरी हो रही है। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ी नहीं जाती वहां, वो पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं ऑफशोर बैंक अकाउंट्स में, लंदन जैसे बड़े बड़े मेफेयर के फ्लैट्स में, वन हाइड पार्क जिधर को कुछ 10 अरब रुपए का जनाब शरीफ खानदान के बेटे के घर में रहता है। ये चोरी तबाह करती है कौमों को। डॉलर कम होते हैं, रुपए की कीमत गिरती है, रुपए की कीमत गिरती है, महंगाई आती है, महंगाई आती है, गुर्बत बढ़ती है। जब आपका रुपया गिरना शुरू होता है, कोई इन्वेस्ट नहीं करता, वो पैसे लोग सारे डॉलरों में रखने शुरू हो जाते हैं, डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। तो इसलिए ये जो वक्त है, ये वक्त है जद्दोजहद करने का। हम एक पुरअमन इनकलाब बैलेट बॉक्स के जरिए लाना चाहते हैं। मैं सारी उन कुव्वतों को कह रहा हूं जिनके पास इस वक्त ताकत है, मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि अगर आप आज सब मिलके, सारे इदारों को मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान हम सब के हाथ से निकल जाएगा। हम अब श्रीलंका सिचुएशन के पहले, तो जब मैंने बात की थी 1 जून के अंदर एक इंटरव्यू दिया था मैंने सभी इब्राहिम को, तो मुझे कहा था गद्दार है ये। आज सारी दुनिया वो बातें कर रही है कि हम जा रहे हैं उधर जिधर श्रीलंका का मतलब यह कि लोगों ने सड़कों पे अब आ जाना है। आटे की कीमत जिधर चली गई है और आटा मिल नहीं रहा, वो जो बेचारा एक आदमी कल आटे की लाइन में खड़ा होकर अपनी जान खो बैठा है, ये अब आगे मजीद और बढ़ने वाला है। लोगों को खाना जिस रेट आटा की कीमत गई है, हमें सबसे सवाल पूछना चाहिए कौन सी क़यामत आ गई पाकिस्तान में कि क्या अप्रैल में क्या था, मार्च में पाकिस्तान किधर खड़ा था और आज किधर खड़ा है, क्या हुआ है? हम सबसे मुश्किल तो तेल की कीमतें थी ना, तेल ऊपर चला गया था। हमारे दौर में 70-80 अरब डॉलर से तेल की कीमत चली गई थी 110-115 डॉलर तक। मुश्किल तो हमें वहां पड़ी हुई थी, अब तो तेल नीचे आ गया है।
तो क्या ये वजह है कि आज पाकिस्तान में कीमतें भी आसमानों पे चले गई हैं, रुपया भी गिर गया है, इंडस्ट्री भी बंद हो रही है? आज 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान में और बढ़ती जा रही है। आज कोई मुझे समझाएं कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी दिल मायूस होकर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 7.5 लाख पाकिस्तानी छोड़ के मुल्क चले गए हैं। उम्मीद खत्म हो गई है। वो जब इन लोगों की शक्लें देखते हैं और देखते हैं कि बदकिस्मती से हमारे ताकतवर हल्के भी इनके साथ खड़े हैं, लोग तो मायूस हो गए हैं पाकिस्तान से। तो ये वक्त है, ये मैं सारे इदारों को कह रहा हूं कि ये वक्त है मुल्क को संभालने का। ये सबके हाथ से निकलने वाला है और ये संभालेगी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जड़ें हैं सारे पाकिस्तान में, जो कि फेडरल लेवल के ऊपर वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। हमारे दुश्मनों का एजेंडा पूरा हो रहा है। ये तो हुकूमत ऐसी आई है, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, ये तो ऐसे आई है कि एक एजेंडा पे आई है मुल्क को तबाह करने के लिए और मुल्क को अपने घुटनों पे करने के लिए, ताकि हम कमजोर हों और फिर हम जो बैरूनी एजेंडा चाहता है, हमारे दुश्मन चाहते हैं कि कमजोर पाकिस्तान को टुकड़ों में कर दे, ये तो उस तरफ जा रहे हैं हम। ये है वक्त एक्शन लेने का। एक्शन क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कोई हम किसी से मदद नहीं मांग रहे, हम कोई किसी की सपोर्ट नहीं चाह रहे, हम सिर्फ जमहूरियत चाह रहे हैं इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की। ये सिर्फ हमारी डिमांड है पाकिस्तान में, अब नहीं। जब से मेरी गवर्नमेंट, बल्कि जब ये साजिश हो रही थी, मैंने तभी इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे। हमें इलेक्शंस चाहिए। इलेक्शंस से एक ही तरीका है। मैं आज चैलेंज करता हूं, किसी तबके से आज पूछ ले कि जनाब हम कैसे निकलेंगे इसमें से, इस दलदल में से कैसे निकलेंगे। हर अक्लमंद इंसान एक ही बात करेगा, साफ और शफाफ इलेक्शन। और कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खुदा के वास्ते ना करें। ये जो हमारे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, पीछे उठा के देखें कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म डिजास्टर हुआ इसका। तो मैं आखिर में अपनी कराची की ख्वातीन को कहना चाहता हूं, अब ये आपके लिए पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। आप असल में मुल्क के लिए, अब अपनी कौम के लिए निकल रहे हैं। आप अपनी जात के लिए नहीं निकल रहे हैं, ओहदों के लिए नहीं निकल रहे हैं, वजारतों के लिए नहीं निकल रहे हैं। आप अपने मुल्क को बचाने के लिए निकल रहे हैं। ऐसे हालात मैंने कभी पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं देखे थे। सिर्फ जब हमारा मुल्क टूटा था तो मुझे तब याद है कि इस तरह का हमें खौफ था। ये उसके बाद इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका है और ये जितनी देर ये ऊपर बैठे रहेंगे, ये क्राइसिस मजीद बढ़ता जाएगा। कोई किसी के पास हल नहीं है। इन्होंने हर महीने पाकिस्तान नीचे गया है। ये जब से आए हैं, अब से तब से अब देख लें, हर इकोनॉमिक इंडिकेटर नीचे जा रहा है और ये समझ रहे हैं कि इश्तिहार दे के शायद निकलाए। अब वो इश्तिहारों का भी वक्त चला गया है। अब सोशल मीडिया आ गया है, सियासी शऊर आ गया लोगों में। हर चीज आप कोई चीज स्टेटमेंट देते हैं, आधे घंटे के अंदर सोशल मीडिया उसको बेनकाब करके रख देता है। तो आपके लिए जहाद है, ये टाइम है कि आपने डोर टू डोर जाना है। मैं ख्वातीन को खास तौर पे कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैंने देखा है कि जो हमारा बाय इलेक्शन हुआ है, इसमें हम इसके बावजूद बाय इलेक्शंस में कि सारी पार्टीज एक टिकट पे लड़ी, इलेक्शन कमीशन ने इतनी बेशर्मी से इनकी मदद की, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हुई और सिर्फ हम कैसे जीते कि पाकिस्तानी कौम निकलाई वोट डालने के लिए। इन्होंने हमारे वोट्स भी बाहर फेंके, जो हलकों से कोशिश की कि हमारे वोट्स बाहर फेंक दें, फैमिलीज के वोट तोड़े, सब कुछ किया इन्होंने। लेकिन जो हमने आखिर में असेस किया, कभी इस तरह ख्वातीन नहीं निकली थी वोट डालने में जो इस बारी निकली हैं। और मैं असल में कहूंगा कि हमें ख्वातीन की वोट ने असल में हमें ये सारे जो 75% बाय इलेक्शन हम जीते हैं, उन्होंने हमें जताए हैं। इसलिए आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आपका मुल्क है, आपकी फैमिलीज हैं, आपका मुस्तकबल है।
آپ نے اب مل کے ہمارے ساتھ اس ملک کی خواتین اور مردوں نے اور بچوں نے اور سٹوڈنٹس نے اور نوجوانوں نے مل کے اب انشاءاللہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے. پاکستان زندہ باد.